हेलो। हाय आवाज चलो निकलो। रिकॉर्डिंग ऑन। Settle down, please. You know my name is Manoj Jaiswal, and you already know. Don't know? Thank you. So we are going to discuss paper 4 of your syllabus of general studies. That is ethics, integrity, and aptitude. How much students are here who are going to write their main exam in this Jammu Kashmir Civil Service? Okay, you also right. No one else? Only two. संतोष तुम्हारा फोन छूटा है जो फोन ही So those who are going to write main examination, do they know what is the meaning of ethics, integrity, and aptitude, and the difference in between them? If you don't know, it's good. But if you have any kind of illusion that you know, that is very dangerous. There should not be any illusion to know. है ना? समझ में आ रहा है ना? Do I need to speak anything in Hindi? No, na? Yes. Someone is saying yes, someone is saying no. Huh? कोई बात नहीं ना? Okay. So, how much students are here who are preparing just way back 2-3 months? Almost everyone. Okay. Chali. Ethics is what? Integrity is what? And aptitude. There are 3 words in your syllabus. Ethics, integrity, and aptitude. Today I am not going to teach you. Yeah, please. For next 10 to 12 days, you just keep in your mind that this teacher never be late. Okay? Be in the class before the class. Okay? If you will enter in the class before 1 minute, then when you will see your watch, the declared or announced time, I'll be here. I do not like to be late, and I don't want to be late. And I don't like anyone who usually, casually
हाँ हाँ आइए। अभी आगे सब कि अभी कुछ लोग और आ रहे होंगे, अभी आ रहे होंगे। तो चलो तब तक कुछ स्टोरी कहानी वहानी सुनते हैं, क्लास करने का तो कोई फायदा है नहीं, है ना। स्टोरी सुने। हाँ? जो लोग भी लेट आ रहे हैं कल से लेट नहीं आएंगे, याद रखेंगे। मैं दरवाजा बंद करके क्लास लेता हूँ, और जिसको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो वो मैनेजमेंट में जाके पूछ लेगा। मैनेजमेंट समझ रहे हो ना, तुम्हारे संतोष जी वट एवर, आप उनसे पूछना वो बता देंगे। ठीक। तो उसका रीजन ये है, आज ही आप समझ जाएंगे। अब मैं क्लास फॉर्मली शुरू करने जा रहा हूं, इसके बाद 5 मिनट बाद जो भी आएगा वो पूरी क्लास में अगर कुछ समझ जाएगा और आपको बताएगा कि अरे व्हाट एवर ही टोल्ड आई गॉट एवरीथिंग, तो जरा मुझे बताना। दिस इज अ सब्जेक्ट विच इज हाईली लॉजिकल, so that one can use his or her logic, but to use logic there is the requirement of a sense, and that is called common sense. And for common sense, it is to be said that common sense is very uncommon in the common men. Common men. Why not common women? Because women have sixth sense. They have one extra. That's why common men. So this is very logical. You must always be very attentive, logical, and both emotional and rational. Okay? Ethics is something that is made by a Greek word ethikos. It means, बोलिए ना, कस्टम, जो जानते हैं बोलना है। ओके, दिस सब्जेक्ट इज लॉजिकल। व्हेन यू विल प्रेजेंट योर लॉजिक यू विल इंप्रूव योर लॉजिक। ओके, एंड रिमेंबर, in my class no one is incorrect. Either you will be correct or less correct, not incorrect. So very subjective subject है ना, ये बहुत ही सब्जेक्टिव सब्जेक्ट है, तो इसमें इनकरेक्ट होने का तो कोई बात ही नहीं। ओके, हाँ, एथिकोस मीन्स कस्टम, एंड कस्टम्स actually decide or determine your character. Don't you think? आइए। Customs, if anyone will not understand why it is, whatever I'll speak, if anyone will not get why, ask me. Okay, don't nod if you don't know why. So if I'm saying customs determine the character, then are you getting the why or not? Why? Why? You were nodding, na? So why? देखो यार, नाम क्या है?
फैसल, अब्बू का नाम कहाँ नहीं बताए? अब लो, मैंने जब पूछा नाम क्या है तो आपने अब्बू का नाम क्यों नहीं बताया? नहीं, अभी भी आप समझ नहीं पाए मेरी बात। पहली से है क्या? मैं जितना खड़ूस दिखता हूं उतना हूं नहीं, चिंता ना करो। हाँ, उतना हूं नहीं, हाँ, लेकिन डिसिप्लिन्ड में बहुत हूं, ये ध्यान रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि टेकन फॉर ग्रांटेड, अरे पैसा दिए कोचिंग वाला क्या कर ले, ये दरवाजा बंद रहेगा। और आप जान लीजिए, मेरा दरवाजा बशर सर भी नहीं खुलवाते। चलिए, तो कस्टम्स जो हैं फैसल, आप सही कह रहे थे, बस थोड़ा थोड़ा लेस करेक्ट है ना, इनकरेक्ट नहीं है। कस्टम्स क्या होते हैं? आपको जीना सिखाते हैं। दे मेक यू अंडरस्टैंड हाउ टू लिव। फॉर एग्जाम्पल, there in here in India, there are a number of several type of customs. Okay, you have a custom that you should wear such kind of clothes. Someone is having a custom कि वो नॉर्थ साउथ इंडिया धोती पहनेगा, लुंगी 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 उताटी डांस दिखाती है ना, टाइप लुंगी। सो व्हाट कस्टम्स है आपका लाइफ में आते हैं। फिर जो वाट एवर कम्स इन योर लाइफ, दैट कम्स इन आइदर मैनर फ्रॉम द कस्टम्स ओनली। It depends upon our recognition whether we are able to recognize them or not. If we are not able to recognize them, then we usually just reject that custom. ये क्या बात हो गई, हम तो ऐसा नहीं करेंगे। और नहीं करोगे तो तुम्हारे बगैर दुनिया चलती रहेगी। या कोई है क्या जो सोचता है कि उसके बगैर दुनिया नहीं चलेगी? दुनिया तो चलती रहेगी भाई। ओके, सो कस्टम्स जो है ये क्या करते हैं, हमारे आपके कैरेक्टर को बताते हैं। चलो कैरेक्टर हटा दो, है ना, थोड़ा ज्यादा हम आगे चले गए, एक स्टेप पीछे लाते हैं। इसके पास मार्कर नहीं है क्या? अच्छा है, अरे वो इरेजर। तो कम से कम कस्टम्स कंडक्ट तो बताते ही हैं, आपका बना ही देते हैं ना कंडक्ट। ओके, दे डिटरमाइन द कंडक्ट और नॉट। आपको समझ आ रहा है? मेरी क्लास में मुर्गे की या मुर्गी की तरह गर्दन नहीं हिलाना है जब तक वाई नहीं समझ में आएगा। अगर नॉडिंग किया, सवाल मैं तुरंत पूछता हूं, क्योंकि मेरा नाम है जाय पाल। ओके, तो कस्टम्स क्या करते हैं? अच्छा, अभी तुम्हारा क्लास का टाइम कितना बजेगा था? कहां से? आपको पता है मैं कहां से आया हूं? रुक रुक, को पता है मैं कहां से आया? कल रात नोएडा से ड्राइवर लेके चला, दिन में 2 बजे, सुबह 4 बजे पहुंचा, 1 मिनट नहीं सोया हूं। चलो अंदर जाओ। अरे सुनो सुनो सुनो, इधर आओ। ए बच्चा, वक्फ बोर्ड वाले होंगे। थैंक यू। चलो, तो देखा कस्टम्स कैसे कंडक्ट बनाते हैं। इट वॉज अ डिमॉन्स्ट्रेशन। मेरा कोई मूड नहीं था, आज पहले दिन क्लास थी, उससे क्यों बोलता। आई जस्ट गिवन यू अ डेमो। उसका
स्टाइल देख के मैं समझ गया था। Neither he was having a bag, nor a copy, nor a pen. तो हम मौलाना थोड़ी ना तकरीर करने आए हैं, सुनो और भुला दो। तकरीर क्या करते हैं अपन, सुनते और भुला देते हैं। कितनी बातें बढ़िया बढ़िया बताते हैं मौलाना साहब, सब भुला देते हैं। हमारा छोड़ो, चलो धंधा करा जाए है। एनीवे, तो चलिए, तो कस्टम्स जो है ये आपके कंडक्ट को बना देते हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि कस्टम्स कहां से, है ना, हम भी तो कहीं से आते होंगे। इनकी बात कभी और करेंगे। अधिकता आप समझ लो कि कस्टम्स क्या कर रहे हैं, कंडक्ट, एंड इट इज आवर कंडक्ट दैट इज एक्सप्रेस्ड इन आवर करेक्टर। क्लियर है? कंडक्ट हमारा क्या है, आचरण, समझते हैं आचरण। अच्छा, कार्ड बस्टर तो बना दिया तुम्हारी जनरेशन ने, क्या करूं मैं साला, कैरेक्टर ढीला है, कार्ड बस्टर बना दिया। क्या रे, देखो अंदर अंदर मुस्कुरा रहा है, पड़ोसी है ना तेरा गाने वाला वो है। तो क्या है, तो बोल रहा हूं बच्चे, तो क्या हुआ है कि हमने क्या किया है, हमने चीजों को हंसी खेल में उड़ाना शुरू कर, लेकिन हमारे कंडक्ट से हमारा कैरेक्टर, आवर कैरेक्टर इज a kind of expression of our conduct, and our conduct is based on the customs, and whatever the customs we have or we had or will have, that is the part of clear. It means what ethics will be or can be a kind of some principles which will guide us to do something, okay, or not to do something. But the ethical principles are the guidance kind of principles, or the guiding principles that tell us do something, but in this manner. That will be a kind of litmus test on which the goodness or badness of an action or a result can be decided or determined. आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हैं, क्या नाम है आप, या प्लीज फिर बैठे रहिए पूजा जी, प्लीज मेरी क्लास में ज़्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं, मस्त रहिए, पढ़िए, जो नहीं समझ में आए 25 बार पूछिए। आप क्यों कंफ्यूज हैं बताइए? थोड़ा सा ना, अब जैसे मान लीजिए कि इंडिया में और पूरी दुनिया में एक चीज कही जाती है, वी हैव टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, कही जाती है। सो व्हेन यू फेस एनी एल्डर, डू यू गिव रिस्पेक्ट और नॉट? You give or not, please, Pooja. You give. It means that principle is guiding. Clear? अभी क्लियर हुआ कि नहीं? That principle is guiding our conduct. How we should behave. ध्यान दीजिए, if we are someone is not respecting the elder,
What kind of his conduct will be? Unethical. Who told you that respect to elders is ethical? Ethical principles. कहां से आया? पता नहीं कितनी सदियों से चला आ रहा है भाई। क्लियर है? कोई नहीं जानता कब से चला आ रहा है, लेकिन है। एंड दिस इज यूनिवर्सल। सो यूजुअली एथिकल प्रिंसिपल्स आर, प्लीज आइए, ethical principles are universal. Not usually, but oftenly, always, anything you can say. तो ethics क्या है, समझ आ गया? हाँ, ethical principles, ethics नहीं, ethical principles. No, not only religion. One of religion, society, culture, a lot of things. You just continue, कोई बात नहीं। बस क्वेश्चन सुनो बेटा। हाँ, their customs are very different from what we Indians okay, but what they are doing that makes their custom, but it is unethical as well. For example, if we decide that person from another region is actually that is not the matter of ethicality. अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आपको पता ही नहीं है, एक और वर्ड होता है मोरालिटी, मोरल। दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ मोरालिटी, ओके, एंड दैट इज सिचुएशनल। एनीथिंग कैन बी मॉरल फॉर एनीवन in any particular society, culture, situation, and that may not be moral for other society, other culture, other situation. For example, when Europeans or Americans meet with each other, how they greet? They hug, they exchange the kisses. अभी तो इधर कर देगा जम्मू में तो क्या हाल होगा? पिटेगा पक्का ना, पिट जाएगा। तो ये है फैजल। तो ये काम है कि उनका कल्चर, उनका कस्टम उसको मॉरल बोलता है। तुम्हारा कल्चर, तुम्हारा सोसाइटी, तुम्हारा कस्टम नहीं, उसको इमोरल बोलता है। बट एथिकल प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल, लाइक ट्रुथ, यूनिवर्सल। Honesty, truthfulness. बोलो ना, यू कैन, हाँ, स्पीक लाउड। खा पी के अभी तो मैं खाना भी नहीं खाया। चलो, सो वर्च्यूज, मोस्टली all the virtues are universal, and all the vices are also virtue universal. नहीं, wishes are also universal. Wishes, not wishes. And not wish, wishes, VICES. What do you pronunciate that? Wow, मुझे पता था। Since 2005, I am teaching in Wiley and Damodar. This time I have come after 6 years. I'm grateful that you people are in my class. You might be ungrateful that I'm your teacher.
चलिए, तो वो मोरालिटी का विषय है, उसको मोरालिटी में पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ आप ये समझो कि एथिक्स क्या है, ये समझ आ गया। अब एथिक्स को क्या है कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल दिया जाता है, दैट्स व्हाई इट इज स्टडीड इन अ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी। इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ branch of, it is a branch of philosophy, branch of philosophy. That's why I have told you that this subject is very philosophy. पता नहीं क्या लिख रहा हूं। देखो मैं हूं नींद में, तो मैं कुछ बोल भी सकता हूं, कुछ उल्टा सीधा लिख भी सकता हूं, पर आप ध्यान रखना, फिलोसफी। ओके, चलिए, तो ये हो गया साहब इंटीग्रिटी क्या है, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इंटीग्रिटी। मैंने अभी तक बोला एक शब्द वैल्यू, वैल्यू। नहीं ना, आप मत पूछिए मैंने बोला क्या, मत पूछिए, मैं बुरा मान जाऊंगा। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इंटीग्रिटी। अरे तुम लोग तो चीटर भी नहीं हो क्या? अरे गूगल बाबा सब तक पूछ के बता चुके होते हैं। हायर डिग्री ऑफ ऑनेस्टी एंड एनीवन एल्स। तुम कुछ और भी बोल रहा था इधर से कोई। हम्म हम्म हाँ, हाई डिग्री ऑफ ऑनेस्टी भी कह सकते हो, पर मुझे लगता है ना ज़्यादा अच्छा रहेगा ट्रुथफुलनेस का हो, तो जहाँ दिल में सच्चाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहे। ट्रुथफुलनेस, हायर लेवल ऑफ ट्रुथफुलनेस, एंड इफ देयर इज हायर लेवल ऑफ ट्रुथफुलनेस फाइसल, ऑनेस्टी सब जगह मिलेगा। मैं उसके पापा को खोद के निकाल रहा हूं। ओके, यू विल रीड इन द बुक्स ऑनेस्टी, अपराइटनेस, दिस दैट, और एक्चुअली क्या है ट्रूथफुलनेस। व्हाई? इंटीग्रिटी इज द टर्म विच can always be and which will always be relative. इतना टेंशन क्यों पाल रही हो? पूछ लो, जल्दी पूछो, क्या समझ में नहीं आया? आप ही से कह रहा हूं मोहतरमा। हाँ हाँ, तो पूछो ना, टेंशन में क्यों? भाई देखो, मैं आपको आज बार बार बोलूंगा कि पूछ लो जिसको वाई नहीं समझ में आया, नहीं तो फिर बाद में बहुत पछताओगे। एक हफ्ते तक तो खूब अच्छा अच्छा लगता रहेगा, फिर उसके बाद ये पता चलेगा कि एथिक्स तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, और नहीं समझ में आएगा इसकी गारंटी मैं ले सकता हूं, समझ लो, और डरा नहीं रहा हूं। दूसरी बात यह भी है कि मेरे बारे में लोग कहते हैं कि अरे गधा को भी सर की क्लास में बैठा दो, समझ में आ जाता है। हंसने को किसने मना किया है? डॉक्टर तो नहीं मना किया होगा। कोरोना प्रोटोकॉल में भी हंसना नहीं मना है, तो हंस सकते हैं आप, ठीक है। तो डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए प्लीज वाई जब ना समझ आए तो प्लीज पूछें, संकोच ना करें। तो इंटीग्रिटी जो है ये हायर लेवल ऑफ ट्रूथफुलनेस है, और ये रिलेटिव होगा। पता है क्यों? एक्चुअली ये रिलेटिव हो ही सकता है। फॉर समथिंग you must be honest, or for something you must be truthful. Is it related or not, relative or not? Clear? समझ आया? मैं तेरे लिए ना बहुत बेईमान आदमी हूं, क्या कर लेंगे? रिलेटिव हुआ कि नहीं? तो जब तेरे लिए ट्रूथफुल होगा कोई, तो रिलेटिव होगा।
तो इंटीग्रिटी क्या हो गई? सिंपल बात, समझ आया? यस। जैसे क्या है, अब देश के लिए क्या होता है, an Indian or any individual living in any country should have loyalty and integrity towards his or her nation. फिर क्या बोले? Towards relative. So integrity is always relative. Even integrity is the, you can say it is a very important thing. Okay, if in a relationship there is no integrity, there is no relationship. आप लोग ट्रस्ट के चक्कर में पड़े रहते हैं। ट्रस्ट तो होता ही है मिसट्रस्ट के लिए। बिलीव टूट जाता है, ट्रस्ट, मिसट्रस्ट, डिसट्रस्ट। फेथ का कोई और इंटीग्रिटी का कोई ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होता। तो इसलिए हैव फेथ इन योरसेल्फ दैट यू आर गोइंग टू बी एन ऑफिसर एंड हैव इंटीग्रिटी टुवर्ड्स योर स्टडीज। उसी में तो सब गड़बड़ होता है भाई। किसके लिए पढ़ते हैं? कुछ लोग अम्मी के लिए पढ़ते हैं, कुछ लोग अब्बू के लिए पढ़ते हैं, कुछ लोग पापा के लिए पढ़ते हैं, कुछ लोग मम्मी के लिए पढ़ते हैं। क्यों पूजा? कुछ लोग हस्बैंड और वाइफ के लिए भी पढ़ते होंगे, ज़्यादा लोग भी हो सकता है क्लास में हो। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि भाई ये मेरे लिए नई बात है। आप ही के जम्मू में मैंने किसी लेडी को पढ़ाया था, आज उनके बेटे को पढ़ा रहा हूं। और वो जब मेरी क्लास में आती थी उस जमाने में, इसी सिविल्स में ही, तो वो हमसे भी बड़ी थी। He was in the class. जम्मू से ही है, उनका बेटा मेरा स्टूडेंट है। तो इंटीग्रिटी एक रिलेटिव चीज है, यानी कि कभी भी कोई रिलेटिव चीज एब्सोल्यूट हो सकती है। इसको समझ नहीं आ रहा। नाम क्या बेटा? शबनम। समझ नहीं आ रहा ना? पक्का रिलेटिव चीज एब्सोल्यूट हो सकती है? क्यों नहीं होगी? With the change in the situation or circumstances, there might be the change in the action and even the result. क्लियर है सबको? खासकर जो एकदम दूर से आया है, बारामूला और उसके आगे से, सबको समझ आ रहा है ना? उधर के लोग बहुत डिप्राइव। अरे अब तो कम हो गया, तो साल में 9 महीने तो स्कूल कॉलेज बंद ही रहते थे। डिप्राइवेशन हुआ कि नहीं हुआ? एजुकेशन क्या कोई इंजेक्शन से मिल जाता है क्या, या AK-47 से? दोनों से नहीं मिलता। अबे चलिए, तो इसलिए मैं घाटी बहुत जाता था, सर बहुत सालों से नहीं गया। मोबाइल ही जाता था, 20-20 दिन रहता था। और जब मुझे कोई कहता था इंडिया से आया, तो कहता मानूंगा एक थप्पड़ अभी तुमको, बदतमीज कहीं, तुम कहाँ गए हुए? मुझे देखता था, सर आप तो बुरा मान गए। हम कहना ना, तुमको याद दिलाना, तुम भी इंडियन हो। चलिए मस्त रहिए। इंटीग्रिटी का ये, तो इंटीग्रिटी जो है ये सीधे सीधे कहां दिखेगी? इट विल एक्सप्रेस्ड बाय योर एक्शन, योर कैरेक्टर, योर कंडक्ट। क्लियर है? जब तक आप ऐसा कुछ करोगे नहीं, पता नहीं चलेगा कट्टा है या ईमानदार। नहीं समझे? ऑनेस्ट ऑफिशियल होगा तो कुछ करेगा तो ऑनेस्ट हो गया, डिसऑनेस्ट होगा तो कुछ करेगा तो पता चल जाएगा डिसऑनेस्ट है। इंटीग्रिटी हमेशा दिख जाती है
ये छुपने वाली चीज, ठीक है भाई साहब। एप्टीट्यूड, ये तो जबरदस्ती सिलेबस में दे दिया। एप्टीट्यूड मीन्स व्हाट? नहीं, आप बैठो, आप बैठो। अरे मैं बैठ लेता हूं अभी। हाँ हमारा नहीं जना, कहा इतना लंबी लंबी छोड़ दे रहे हो तुम लोग, बेसिक बात बताया करो। हाँ हाँ, किसी चीज की क्षमता ना, हमको तो नहीं जमता, ये क्षमता भी हमको नहीं जमता। आमा यार, मेंटल इंक्लिनेशन ना कहो, हैं? कह दें? हाँ, ये क्या है? एप्टीट्यूड इज नथिंग बट द ओरिएंटेशन ऑफ अ इंडिविजुअल, यानी कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट। एप्टीट्यूड इज एरिया ऑफ इंटरेस्ट। आईक्यू टेस्ट में क्या पता करते हैं? What they identify nothing. They just try to tell that this person is having this level of aptitude. That's why this person or this child or this individual can do this type of work. And then at the same time, some very exceptional people come and they reject all those things, like Thomas Edison Alva. क्या? थॉमस एडिसन, क्या नाम था उसका? एडिशन, तो जो बल्ब जलाया था, बल्ब जलाया था, बल्ब जो जलाया, बिजली चमका। You might be knowing that he was expelled from his school, and the principal wrote a letter in the name of his mother that this child is having a very low IQ, that's why cannot be educated well. उन्होंने उसका IQ टेस्ट किया था, तो उसमें निकला था उसका ऋतिक रोशन वाला IQ, क्रिश मूवी वाला, जब तक कि जादू नहीं मिला। IQ लेवल 50 to 70, मोरॉन। ओके, और फिर उसने क्या कर दिया? बल्ब आ दिया। So this happens. That is why it is to be said that attitude, not the aptitude, determines the altitude. नहीं समझे? Attitude determines the altitude. कहां तक पहुंचेंगे फैजल मियां, वो आपका एटीट्यूड डिसाइड करेगा। इधर कितना IQ लेके घूम रहे हैं, कुछ नहीं फर्क पड़ता। Okay, and when you will study this paper 4, you will learn that above all there is emotional intelligence that decides or determines your excellence in your life. Emotional intelligence. इमोशनल इंटेलिजेंस जब लेकर के आया उसने, उसका क्या नाम है, गोल्डमैन, डेनियल गोल्डमैन, अभी मुंबई आया भी था सेमिनार लेने। तो प्राइवेट सेक्टर करने लगा इमोशनल अत्याचार। एनीवन हैव सर्व्ड इन प्राइवेट सेक्टर और इज सर्विंग इन प्राइवेट सेक्टर? रेज योर हैंड। कोई प्राइवेट सेक्टर, अच्छा फैजल आप काम कर रहे हो किस? पुणे में करते थे ना? उस जगह तो फिर पक्का सॉफ्टवेयर वगैरह में रहे होंगे।
इनका बॉस आता रहा होगा, बच्चा कोई बैठा नहीं है इधर, कंधानदार फैसल कैसा है, अबे सुना तेरी गर्लफ्रेंड नाराज हो गई यार, टेंशन ना ले यार, कोई नहीं, चल चल थोड़ा कॉफी वॉफी मार के आते हैं, कॉफी वॉफी पिलाया, लौट के आया 4 फाइल एक्स्ट्रा, फैसल बहुत इंपॉर्टेंट है, पड़ेगा। अबे बेचारा काम के बोझ का मारा रात को 12 बजे फाइल निपटा रहा है, अम्मी का फोन आ रहा, अम्मी अभी रखो, बिजी हैं, बहुत बहुत बिजी हैं, बहुत काम है, मिस यूज करने लगे। लेकिन दे आर यूजिंग देयर इमोशंस एंड अदर्स इमोशंस इंटेलिजेंट, दिस इज कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। तो कहते हैं कि जो ज्यादा सक्सेसफुल होगा, एटीट्यूड तो ठीक है, साथ में इमोशनल इंटेलिजेंस भी हो। और वहीं पे कुछ ऐसे बॉसेस भी होते हैं जो कंधे में हाथ रख दे अपने सबऑर्डिनेट के, तो सबऑर्डिनेट सर ये क्या तरीका है, हाथ हटाइए, रिमूव योर हैंड्स, इट्स नॉट गुड, लड़की समझ ली है क्या हाथ रख रहे हैं, हटिए। ऐसा भी सबऑर्डिनेट करता है कुछ बॉसेस के लिए, भाई दे आर वेरी पुअर इन इमोशनल इंटेलिजेंस। थोड़ा सा एरर हुआ तो सबऑर्डिनेट के खोपड़ी पे चढ़ बैठे, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तेरी है, सबऑर्डिनेट इज सबऑर्डिनेट। अल्टीमेटली द हायर लेवल अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल। लेकिन आप देखोगे तो ना केवल ये ऑफिसेज में, ना कि कहीं भी, एवरीवेयर देयर इज अ टेंडेंसी टू शो, समझा नहीं समझा, हाँ, to shed the responsibility on others or to criticize others। कुछ गड़बड़ हुआ तो मैंने नहीं किया, इनने किया है, अच्छा हुआ तो मैंने किया, ये टेंडेंसी है सोसाइटी में, है ना। चलिए, तो कोई बात नहीं, तो एप्टीट्यूड जो है ये आपकी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। जैसे कई बार क्या होता है, माइट बी कि आप कुछ सीनियर्स वगैरह से बात करें तो पता चलता है, आपको पता चलेगा, हो सकता है आपके कुछ ऐसे सीनियर्स हैं जिनका बड़ा अच्छा इंटरेस्ट रहा किसी एक सब्जेक्ट में, और वही सब्जेक्ट ने उनको कभी क्वालिफाई नहीं करने दिया। हमारे यहाँ गांव में कहावत है, अच्छा, हाउ आई लुक लाइक आई एम ऑल्सो द रियल एग्जाम्पल ऑफ, जो दिखता है वो नहीं होता। I look like South Indian, but I'm not. I'm typical North Indian इलाहाबादी। ओके, इलाहाबाद सुना होगा आपने, हाँ, तो मैं साउथ इंडियन नहीं हूँ, ठीक। वाह यार, तुम चाय बनाने के लिए एक भट्टी उट्टी लगा के आए हो का, और इतनी तारीफ कर दी है इसकी, पानी तो दिए नहीं हमको, असलम मियाँ पानी दे दो, नहीं वो लाएगा, डोंट वरी, जिसका काम पानी नहीं है, अच्छा है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, है मतलब है, इतना छुपा के रखा है, जैसा लगता है कि नई नई दुल्हन है। ह्यूमर्स बट नॉट र्यूमर्स आते रहते मेरी क्लास में, वो आप पर है कि क्या उसको आप समझ पाए, हंस लिए तो ठीक, नहीं हंसे तो मस्त रहिए। तो ये हुआ साहब आपका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी। ओके, सपोज you are going to say that you have to behave like in this way or in this manner, ethical principles, okay, so principles can be
principles can be found only in the form of नहीं, can be found only in the form of either scientific or less scientific but not unscientific. Less scientific means social sciences, and we know that philosophy is the mother of all the subjects. All the subjects. पहले सब फिलोसफर ही होता था, फिर एस्ट्रोनॉमी पर भी बोल देता था, और भी किसी चीज पे बोल देता था. भाई देखो, फोन को अपने शांत मुद्रा में रखो. इनके भी फोन के घंटी उंटी बजने की शक हो, अपना एक बार चेक कर लें, उसको मोड में डाल दें, साइलेंट मोड में. चलिए, तो ये क्या होगा, आपको फिलॉसफी में पढ़ने को मिल रहा है. बट इंटीग्रिटी is also an area of concern where you need some inner self orientation, नहीं, orientation of inner self, I'm sorry, उल्टा हो गया, orientation of inner self. अंदर से आएगा ना, ये बाहर का मामला नहीं है, ये अंदर का है. जैसे बादाम खाओगे, कहवा पियोगे, तब अंदर से शरीर गर्म रहेगा, नहीं तो कपड़े चाहे जितने पहन लो, ठंड तो लगी जाएगी, और बर्फ में तो पक्का लगेगी. भाई तो सच है. एक बार मुझे भी लग गई थी 2005 में, एजुकेशन डायरेक्टरेट में प्रोग्राम था, और हम भी फरवरी में आए थे, और उसी दिन बर्फ गिरी थी. भी राजा बाबू बन गए, टोपी ओपी नहीं लगाया, बढ़िया टाई वाई लगा के डायरेक्टर खड़े हो गए. प्रोग्राम तो हो गया, दिल्ली वापस पहुंचे बीमार. 14 दिन तक ठंडा ही नहीं निकला मेरा, कोई चीज असर नहीं कर रही थी. तो ठंड तो लग जाएगी, है ना भाई. 14 दिन बाद वो निकल गई, पता नहीं कैसे, पूरा मान गई. एप्टीट्यूड, दिमाग का खेल, दिमाग का है ना ये. तो यहां देखो, यहां आएगा तुम्हारा साइकोलॉजी. क्लियर. इधर आया फिलॉसफी, इधर भी आया फिलॉसफी. लेकिन आपका सिलेबस, प्लीज ओपन द सिलेबस, ओपन द सिलेबस. अब कोई ये मत कही ना कि कहां से खोलें, गूगल बाबा से पूछो, तुरंत खोल के दे देंगे. जल्दी खोलो. फोन है ना? हाँ, फोन तो रहेगा, चाहे कुछ हो चाहे ना. लंच बॉक्स हो बैग में चाहे ना हो, फोन पकड़. खोलिए. गुड. सिलेबस में पहला और दूसरा पैराग्राफ छोड़िए, तीसरे पैराग्राफ में जाइए. क्या लिखा है? इमोशनल इंटेलिजेंस. और इसके ऊपर तीसरे के पहले क्या लिखा है? तो एप्टीट्यूड, एटीट्यूड और इमोशनल इंटेलिजेंस. एप्टीट्यूड, एटीट्यूड एंड EI, इमोशनल इंटेलिजेंस. These are the area of psychology. क्लियर. फिर उसके नीचे जाइए, गो डाउनवर्ड. बोल भी दीजिए कोई जन. जाने का मतलब ये थोड़ी कहना कि आप नीचे जाइए, एकदम मत जाइएगा, सीढ़ी चढ़ उतरना पड़ेगा. जब आगे बोलो क्या है. मॉरल थिंकर्स. अब देखो, मॉरल थिंकर्स क्या सिखाएंगे? मोरालिटी या एथिकलिटी? मोरालिटी. दैट इज आल्सो रिलेटेड विद फिलॉसफी. मॉरल थिंकर्स का टॉपिक फिलॉसफिकल है.
ओके, फिर हाँ, तो सीधे एक नया चीज शुरू हुआ, दैट इज रिलेटेड विथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर? अब आ जाइए, मेरा जो अगला काम है, अगला काम है कि आपको ये जान लेना जरूरी है कि व्हाट योर सिलेबस डिमांड्स। योर सिलेबस डिमांड्स, फर्स्ट थिंग you must remember line by line, word by word your syllabus। इसको याद है किसी एक पेपर का। देखिए आई, ऐसा भी होता है आजकल की दुनिया में कि शर्म से चुल्लू भर पानी में डूबने का मन ही नहीं करता। मैं किसी को कुछ कह नहीं रहा हूं, ये याद रखना, मैं कभी किसी को कुछ नहीं कहता। हाँ, एकदम नहीं। ठीक, तो फैसल नौकरी वोकरी छोड़ के आए हो, तब सब लोगों के लिए एक बड़ी ज़रूरी चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ। मैं बहुत सारे ज़यीफ़ लोग दिख रहे हैं, बुरा ना मान जाना आप। हाँ, अभी अभी आपके आने के थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि मैंने अपनी, अच्छा आप थे, मैंने अपनी क्लास में, इसी सिविल्स की क्लास में एक लेडी को पढ़ाया था, अब उनके बेटे को पढ़ा रहा हूँ। बुरा मानने की जरूरत नहीं। बुरा नहीं मानना। मैं अभी भी पढ़ता ही रहता हूँ, अभी मैं पढ़ता हूँ, कोई ना कोई पढ़ाता ही रहता है। देखो अभी कैसे पढ़ा गया वो, सब पढ़ाते रहते हैं। यू नीड टू लर्न। सिखाने वाले तो सब जगह मिलेंगे, सड़क पे भी। तो जरूरी क्या है ये आप जान लीजिए, और क्या रीजन है व्हाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेल इन दिस एग्जाम, यू क्वालिफाई। So I'm going to tell you the strategy of failures. I never tell anyone the strategy of success. ठीक है, चलिए जान लीजिए फेल क्यों होते हैं लोग। इसके बाद इसका सिलेबस का एक्सप्लेनेशन होगा और बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा, डोंट वरी। किस चीज की तैयारी कर रही हैं आप शबनम? सिविल सर्विसेज की, ओके। आप भी केस की नहीं ना? दोनों की। हम्म, अच्छा। घर कहाँ है आप? हाँ, बरनी, बांदीपुरा। घर पहुंच जाओगे अगर निकलो अभी जम्मू से, तो हो जाओगे। यू नो योर घर। हम्म? मतलब घर जाने के लिए तुमको रास्ता पता होना चाहिए कि नहीं? और तुम तो ऐसे भी पहुंच सकती हो, रास्ता बताओ चाहे ना। इनका सही है, इनका घर पास में है, ज्यादातर ये अपने पॉकेट में या तो वॉलेट में लेके चलती हैं। वॉलेट ये लोग रखती नहीं है, वो बैग रखती हैं, उसमें लेके चलती हैं। जब मन हुआ घर में घुस गए। ये सही है। आप, आपका भी बगल में ही होगा, डेफिनेटली होगा। शबनम का भी बगल में होगा, दूर है, सांबा से आती हो, दैट्स गुड। अच्छा, तुम दोनों एक साथ के हो। अब आप देखिए
इतनी देर से मैं बकवास कर रहा हूं, कोई ये नहीं कह रहा कि सर समझ गए क्या कह रहे हैं आप। क्या कह रहे हैं? रास्ता इंपॉर्टेंट है और घर नहीं इंपॉर्टेंट। पहुंचने के लिए रास्ता इंपॉर्टेंट है और घर भी जानना जरूरी नहीं। तो मेरे घर में घुस गई तो डेस्टिनेशन भी और इंस्ट्रूमेंट भी, कार व्हीकल वाले हैं। पर यहाँ चले आए मुंह उठा के आईएएस बनने, डेस्टिनेशन नहीं पता ही नहीं है। डेस्टिनेशन, हाँ डेस्टिनेशन पता है, किसी को नहीं पता। सिलेबस ही नहीं पता तो काय का डेस्टिनेशन बना। अगला 3 दिन में सिलेबस नहीं याद रहा तो भरी क्लास में सबकी इज्जत उतारूंगा। बड़ा बेइज्जती करता हूं मैं। याद हो जाएगा? पहली अब क्यों तुम बहुत अंदर अंदर हंस रहे हो जनाब। आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ तक लगा लोगे तो हम समझ नहीं पाएंगे। समझ हम जा रहे हैं, कोई बात नहीं, आनंद के साथ पढ़िए। अब देखिए कि आपको अगर सिलेबस ही नहीं पता है तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है जो आप पूरी जिंदगी यहां वहां मुंह मारते रहते हैं। सर करंट में क्या पढ़ें, करंट कैसे तैयार होगा, करंट अफेयर्स में क्या छोड़ें, या हिंदू में क्या पकड़ें क्या छोड़ें। सिलेबस याद रहेगा तो अगले दिन से ये सवाल पूछना बंद हो जाए। You will get to know what is relevant for you and what is irrelevant for you. Okay? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये फेल्योर स्ट्रेटजी ये है कि डोंट रिमेंबर योर सिलेबस। ठीक है? तो सिलेबस चाहिए, देखो सिलेबस, और उस पर तुर्रा ये है कि अभी मुझे फिर क्लास लेनी है 7 बजे से 8:30 बजे तक, फिर शायद 9:30 से 10:30 बजे रात तक। मैं सोया नहीं हूं 2 मिनट, अब दिमाग खराब हो गया। पूरा बंद कर रखा है यार जाहिलों ने, रास्ता पूरा जाम। 8-9 घंटे ड्राइवर लेके आया था, गाड़ी अपनी लेके आया हूँ, 8-9 घंटे में पहुंच जाना चाहिए, 13-14 घंटे लग गए। हद है इस देश में, जिसका जो मन में आता है करता रहे। हिटलर की जरूरत है? सच यही है फैजा, सच यही है। चलिए, तो सिलेबस पूरा, पेपर 1 में क्या है, पेपर 2 में क्या है, पेपर 3 में क्या है, पेपर 4 में क्या है, इतने से काम नहीं चलेगा। उनका अंदर में क्या है। दूसरा फायदा क्या होगा, अब मैं आया सपोज बड़ी बड़ी बातें करूं, कुछ भी करूं, चला जाऊं और बता दूं कि सिलेबस खत्म हो गया, तो आप तो बुद्धू है ही हैं, आपको बुद्धू बनाने की क्या जरूरत है। आपको पता ही नहीं सिलेबस क्या है, तो हमने जिस दिन कहा इति सिद्धम उसी दिन हो गया। आपको पता ही नहीं, तो मतलब मेरे जैसा कोई भी आदमी आएगा आपको मूर्ख बना के चला जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर वाले मूर्ख हैं, अब हो तो आप जानिए। टेरर स्ट्रेटजी दूसरी ये है कि स्वयं को मूर्ख बना लो, नहीं तो रेशनल बना लो, विवेकशील। एटलीस्ट इंटेलिजेंशिया तो बहुत मुश्किल चीज है, तो आप रेशनल हो जाइए। और सिलेबस के साथ साथ क्या होगा, उसका सारा इंग्रेडिएंट्स, एक एक लाइन, वर्ल्ड हिस्ट्री में कौन कौन सा टॉपिक है, मिडाइवल हिस्ट्री में कौन कौन सा टॉपिक है, एंशियंट में कौन सा टॉपिक है, एंशियंट प्रीलिम्स में आता है तो मेंस में आता है कि नहीं आता है, ईच एंड एवरीथिंग यू मस्ट बी नोइंग। So preparation starts from here actually. Thereafter, you should have
योर हैंड रिटन नोटबुक, हैंड रिटन। कितने लोगों ने आज तक, हाँ, जो 4-6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, हाथ उठाएं। 6 months, how much pages you people have written? Be honest with yourself. कितने पेजेस? क्लास वाले ना, उसके अलावा कितना लिखा? कुछ नहीं, नहीं लिखा ना। और अच्छा, एक चीज और देखा है मैंने जम्मू कश्मीर में, बड़े वर्षों से मैं देख रहा हूं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका वश चले ना, इफ दे कैन देन दे विल राइट ऑन दिस एरिया आल्सो, दिस एरिया। नहीं समझे क्या आप? मतलब यहां से शुरू करेंगे और यहां खत्म करेंगे। ठीक है, इकोनॉमी इज गुड, बट कंजूसी माइजरनेस इज नॉट गुड ना। दूसरी बात यह है, नोट्स बनाने का एक तरीका है, और वो क्या है ये जान लीजिए। जो भी आपका पेज है उसके दोनों साइड खूब ढेर सारी जगह छोड़िए, दिस साइड एंड दिस साइड। राइट ओनली इन बिटवीन। सपोज आई एम टेकिंग द क्लास ऑफ एथिक्स, you studied in the class, you wrote, you got a study material kind of notes, but when you are when you will read or study, बस अभी आगे बताऊंगा कि रीडिंग से भी कोई सिलेक्शन, अगर आपको फेल होना है तो आप रीडिंग करिए, जो आप करते रहते हैं, कभी सेलेक्ट नहीं होंगे। तो when you study any other text, any other news, whatever, अब क्या होगा? You are not having any place in the topic of your notebook, then you will write here and there, here and there, here and there. And if you have the space in your notebook, you have to write that in these areas. जितना भी कुछ नया चीज आपने पढ़ा जो इसमें नहीं मेंशन है, that you have mentioned this side and that side. After a particular time period, मीन्स 2-3 बार आपने किसी टॉपिक को, सॉरी, किसी भी सेक्शन को पढ़ा, टॉपिक तो खैर टॉपिक भी कह लीजिए, किसी सेक्शन को 2-3 बार पढ़ा, 1-2 सोर्सेज आपने और यूज कर लिए, कंप्लीट, गेम ओवर, है ना भाई? तो कंप्लीट हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, तो फायदा क्या होगा? And you will appear in exam, you will be having only 200, 250, 300 pages, your handwritten, for a complete section of general studies. And not more than 500-600 pages in your handwritten in your optionals. मान लो एक दिन का गायब हुआ, अगला दिन एथिक्स का पेपर है, 250 पेज आपने ही लिखा है, कितना घंटे लगेगा? मैंने तो बड़े बड़े नॉवलिस्ट के नॉवेल जो है 250-250 पेज के 6-6 घंटे 8-8 घंटे में खत्म कर दिए, रात भर जागा, सुबह खत्म, फिनिश। भाई, और आपके लिखे हुए हैं तो उनको तो आपने 100 बार, 10 बार, 25 बार पढ़ा भी है, then you will just rise and you will write a very good main exam. आप आंसर्स बहुत सही लिखकर, प्रीलिम्स में भी अगर आप जाएंगे तो प्रीलिम्स का भी आपका टोटल अगर 110 नोट्स है तो मैक्सिमम 200 पेजेस का होगा। 3 दिन पूरा रिवाइज, फिर 3 दिन फिर पूरा रिवाइज, फिर 3 दिन फिर पूरा रिवाइज, आप क्वालिफाई। तो अगर आपको फेल होना है तो आप नोटबुक ऐसे ना बनाएं जैसा मैं कह रहा हूं, ठीक? अगला है
पढ़ते हैं आप, who will tell me the difference between reading and study? बताइए, जवानी बीत गई, बुढ़ापा आने को है, रीडिंग और स्टडी का फर्क ना बता। है ना? Understand and then forget and then forget. Understanding only, that's for studying ना? हाँ, चलो कोई बात नहीं। अब अगला मसला है, अगर आप फेल नहीं होना चाहते हैं, अगर आप फेल होना चाहते हैं तो रीडिंग करते रहिए, और खास करके वो वाली आदत अपनी जरूर बनाए रखिए। आपको रंगों से बड़ा प्रेम रहता है, कोई रेड पेन लाइक, फिर ग्रीन, येलो, डर्टी फेलो, यानी कौन कौन सा सब चलता है। किताबें कलर कर रहे हैं, हम आप बुढ़े हो जाओगे, सिलेक्शन ना होगा। ठीक है? स्टडी इज समथिंग एल्स। तो अगली बात है कि स्टडी करिए, और जो आज तक किया है वो छोड़ दीजिए, अब स्टडी करिए। स्टडी, एस फॉर स्टार्ट। So what we start to read. This is reading. क्या करो? पढ़ रहे हैं, तो जैसे नॉवेल पढ़ते हैं, हजारों हजार नॉवेल पढ़े होंगे, मैं 10-20 के ज्यादा नहीं याद है अभी, बहुत। और जो 10-20 भी याद है, उनमें सारा कुछ थोड़ी नहीं याद रहेगा, कुछ कुछ सम एसेंस काइंड ऑफ थिंग्स, है ना? ओके, चलिए। तो इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स दैट रीडिंग इज जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ योर स्टडी। आफ्टर रीडिंग, T for try. What to try? Try to recall. कितने लोग रेगुलर प्रैक्टिस में करते हैं? कब से छोड़ा? 8वीं से कि 10वीं से? रिकॉल करना कब से छोड़ दिया जनाब? हैं? तो क्या आप ये समझते हैं मजाक है कि रटा देता है पूरा का पूरा कुरान? बच्चा ऐसे मुंडी हिला हिला करके रट जाता है। That is the power to recall. पढ़ने से नहीं रटेगा, रिकॉल करता है। वेद, पुराण, जाने कितने ऐसे लोग हैं, सबको मुंह पर एक एक श्लोकास याद हैं, पूरा का पूरा ऋग्वेद। दे स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड पावर टू रिकॉल। तो सेकेंड स्टेप इज रिकॉल, बट अभी स्टडी पूरा नहीं हुआ। अब रिकॉल करेंगे, देन यू विल मिस, पक्का मिस करोगे। जिन लोगों ने आज तक अपनी लाइफ में ऐसा नहीं किया है, या करते थे बचपन में, अब छोड़ दिया है, तो स्टार्ट करिए। हो सकता है शुरू में आपको 2, 4, 6 लाइन में ही फिर रिकॉल करने में मिस हो जाए, आप भूलें। लेट दैट बी, परेशान मत होइए। ओके, फिर क्या होगा? आपका कुछ दिनों बाद पैराग्राफ हो जाएगा, फिर 1 पैराग्राफ से आप 2 पैराग्राफ पे चले जाएंगे, फिर हो सकता है पूरे के पूरे पेज पर चले जाएं, और एक बार पूरा पेज पढ़ेंगे, फिर रिकॉल करेंगे। और फिर एक दिन ऐसा भी आएगा कि पूरा का पूरा पेज पढ़ेंगे, उसमें से 5-10 वर्ड आपको दिमाग में रख लेने होंगे, और जब कोई पूछेगा पूरा पेज आप
वॉमिट कर सकते। क्लियर? तो क्या करना है? रिकॉल करना है। अब रिकॉल कर लिया तो फिर यू फॉर यूज, ये सबसे डिफिकल्ट काम है और कश्मीर के लिए तो बहुत डिफिकल्ट। इतनी ठंड पड़ती है, लिखेगा कैसे? तो आप लोग ठीक किए जम्मू आ गए, थोड़ा कम है यहाँ ठंड, थोड़ा तो कम है ना, थोड़ा कम है। तो क्या होता है कि आपको यूज करना है। अब कहाँ यूज होगा? तो आपको मैंने सिलेबस तो बताया, लेकिन एक चीज नहीं बताया कि और क्या चाहिए। यू मस्ट ऑलवेज हैव क्वेश्चन बैंक्स। And I personally do not like any content in our phone or in our laptop. I like the print out. What you like, I don't know. If you like, अब तुम मान लो इंजीनियर हो फैसल में, आता तुमको तो स्क्रीन पे पढ़ने का आदत होगा तो कोई बात नहीं, you can go through with that. But ज्यादातर लोग को ये करना चाहिए कि उनके पास प्रिंट में, ओके, का प्रिंट आउट रखिए। Now whatever you started, what you recalled, and now you are having in your mind, then just see the question and use your knowledge in those questions. Try to solve them. अब इधर दो तरह का स्टडी आपका है, प्रिलिमिनरी एंड मेन, तो यू शुड सॉल्व द प्रीलिम्स क्वेश्चन आल्सो, prelims and as well as mains. When you will answer the main exam question, you have to direct your knowledge, direct your information, not knowledge, direct your information. Whatever you have got in your mind, you have to direct your information. That is not knowledge, that is just an information. ओके तो जब आप मेन एग्जाम का आंसर लिखने जाते हैं तो पढ़े वही टॉपिक रहते हैं, यू हैव स्टडीड द सेम टॉपिक, बट व्हेन यू सी द क्वेश्चन यू फाइंड योरसेल्फ इन अ वेरी डिफिकल्ट पोजीशन। आपको समझ नहीं आता कैसे लिखें, क्या लिखें, आता है ये प्रॉब्लम, आता है ना। दिस इज अ वेरी यूनिवर्सल काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो जिनको फेल होना है वो कभी मेंस का आंसर ना लिखे, ठीक है, कभी ना लिखे मेंस का आंसर, दे विल नेवर क्वालिफाई। और मैं एथिक्स पढ़ाता हूं तो भी इस मामले में एब्सोल्यूटिज्म के साथ बोल रहा हूं, दे विल नेवर क्वालिफाई। एब्सोल्यूट ट्रुथ है ये, याद रखिएगा। तो मेंस का आंसर नहीं लिखेगा वो कभी भी फाइनली क्वालिफाई नहीं करने वाला है, ये नोट कर लीजिए। क्योंकि इसके बाद है yields, achievement, attainment, whatever, yield, ठीक है। तो जब तक आप मेंस का आंसर नहीं लिखोगे फ्रेंड्स, तब तक आप समझ लीजिए कि आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, आप क्वालिफाई नहीं करोगे। एंड थिंक अबाउट योर स्ट्रेटजी। अच्छा, कितने लोग हैं जिनके पास टाइम बड़ा कम है? टाइम बहुत कम है, हाथ उठा दो, शर्माने की जरूरत नहीं है, हमने देख लिया। आपके पास भी कम है, पूजा के पास भी कम है, और
टाइम कम कितना है पूजा आपके पास? 1.5 month। तो एज खत्म हो रही है। तेरा एज तेरा ही है, तेरा तो एज फैक्टर नहीं होगा। हाँ, यू आर वर्किंग समवेयर। ओके, अच्छा मेरा उस सेंस में नहीं था, मेरा इस सेंस में है जिस सेंस में पूजा ने बताया। उस सेंस में किसके पास टाइम कम है? कब से तैयारी कर रहे हैं? 6-7 महीने हो गए। देखिए ये एग्जाम ना 18 महीने का एग्जाम, 18 months। जेएनके नहीं, डोंट गेट टेंस्ड। जेएनके नहीं, जेएनके तो 18 दिन का एग्जाम है। 18 days मैन। एक बार सिलेबस कवर कर लो, 18 दिन रिवाइज करो, सेलेक्ट हो जाओगे। मैं सिविल सर्विस की बात कर रहा हूं, और अब हो जाओगे, क्योंकि अब लिस्ट सीएम हाउस से नहीं आती, तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। ऐसे मत देखो मुझे, बहुत कड़वा टाइप करेला हूं, सच ही उगलता हूं। अच्छा लगे वेरी गुड, बुरा लगे देन एक्सलेंट। सच है वो, सच। तो खैर, अब मैं जम्मू कश्मीर में अपनी सर्विसेज दे रहा हूं 2005 से। नस नस जानता हूं मैं। नहीं यार, कुछ नहीं कर पाए जिंदगी में, फेल, अनसक्सेसफुल। फेल नॉट अनसक्सेसफुल, बोलने नॉट जा रहा था, वो गलती से निकल। असफल तो मैं कभी नहीं होता। एंड सक्सेसफुलनेस इज व्हाट? सक्सेसफुलनेस इज आल्सो रिलेटिव। पिलोपन, रिलेटिव। What you was yesterday, if you are not today, then it means you are successful in comparison to last day. Okay? तो अनसक्सेसफुलनेस कुछ होता ही नहीं है, दैट इज इल्यूजन, दैट इज इल्यूजन। फेल होते रहते हैं, फेल होते रहते हैं। तो कोई बात नहीं, चलिए अब मुद्दा यह है कि 18 महीने क्यों चाहिए। आप तो पहले से पढ़ रही होंगी ना। क्या कर रही हो? अच्छा, छोड़ दिया बीच में, जब वो प्रॉब्लम आई तब छोड़ा क्या जेके में? ऐसे ही छोड़ दिया सिविल सर्विस के लिए? फिर ज्वाइन कर सकती हो, और तो छुट्टी ले लेती, बिजनेस करती है। ऐसे तो बना ही रही, फिर लाइफ सेट है, तब ठीक। लाइफ सेट होना चाहिए, क्योंकि इनसिक्योरिटी जो है ना, लंबे समय तक चल नहीं सकती। असुरक्षा की भावना जो है, इनसिक्योरिटी और द सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी मेक्स यू और अस फ्रस्ट्रेटेड, and frustration converts into two type of other psychological state of mind, aggression or depression.
If it is aggression, then it is good. The individual will harm either himself or herself or someone other. But depression is only himself or herself. तो अग्रेसिव आदमी कोई हो तो उसको देख के थोड़ा टेंशन ज्यादा ना लो, अच्छा है कि अग्रेसिव, खुद को तो नहीं मारेगा। चलिए कोई बात नहीं, ये सारी चीजें आएंगी धीरे धीरे। साइकोलॉजी वाला एस्पेक्ट जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें सब आएगा। अब देखिए साहब, फाइनल चीज आपको क्या करनी है, अपनी तैयारी को, जिन लोगों के पास अभी वक्त है सिविल सर्विसेज की तैयारी का। अच्छा, एक और रीजन है, साल में कितने एग्जाम देते हैं आप लोग? हाउ मच एग्जाम्स इन ईयर? एक ही दो ना? अच्छा, इधर ठीक है, यूपी में बहुत प्रॉब्लम है, हर महीने एग्जाम देते हैं। क्या हुआ? लोअर सबऑर्डिनल आया, फिर क्या हुआ? समीक्षा, वो आरओ आया, फिर क्या हुआ? तो कुछ और आया, फिर क्या हुआ? चपरासी आया, फिर क्या हुआ? क्लर्क आया। अब एग्जाम ही देते रहोगे तो फिर प्रिपरेशन कब करोगे? अब आया मुद्दा फैजल मियां प्रिपरेशन का। आप में से कितने लोग हैं जो आराम से निकलते हैं घर से, तो जूते वूते टांग लेते हैं हाथ वाथ में, फिर रास्ते में पहन लेते हैं, फिर कंघी वंगी रास्ते में कर लेते हैं, कपड़े वपड़े जो है फिर रास्ते में पहन लेते हैं। कितने लोग हैं? कोई नहीं। इतना देर तक सोचते समझते हैं, चला आईना टूटने के खतरे में आ जाता है। आईना कहता भाई बस करो यार, नहीं मैं टूट जाऊंगा। और यहां आते हैं इंडिया की मोस्ट प्रेस्टिजियस सर्विस के लिए, तो कैजुअली क्या तैयारी कर रहे हैं, बस इस बार देना है एग्जाम। तो बिना तैयार हुए एग्जाम दिया जा सकता है क्या? जब बिना तैयार हुए आप घर से नहीं निकल पाते, जब चार ही अच्छे से तैयार हो गए, ये भी जरा ध्यान रखिएगा, और केवल मोहतरमाओं को नहीं, जनाब अली को भी ध्यान में रखना होगा मेरी ये बात, कि वो भी खूब अच्छे से तैयार होकर निकलते हैं, ऐसा नहीं कि वो जल्दी में निकल लेते हैं। ठीक, तो ऐसे में भाई मैं तो कम से कम 20 मिनट लेता हूं, 20 मिनट्स मुझे तैयार होने में 20 मिनट लगता है। हाँ भाई बिल्कुल, अरे मुझे कोई एक जन देखते हैं, सैकड़ों सैकड़ों लोग देखते रहते हैं लगातार, तो ढंग से तैयार होकर निकलना पड़ेगा कि नहीं? आदमी किसके लिए तैयार होता है? दूसरों के लिए ही। अच्छा, अनुभव ही नहीं तुमको, हद हो गई है, दूसरों के लिए। आप किसके लिए तैयारी कर रहे हैं? आप अपने जेएनके आयोग कमीशन के लिए या फिर यूपीएससी के लिए? तो प्लीज ये ध्यान रखना होगा कि विदाउट प्रिपरेशन एग्जाम देने से क्या मिलता है? केवल फ्रस्ट्रेशन। तुमको याद है क्या? तुम क्लास में रह चुके होगा हमारे यार, तब तुम तो फिर पुराने चावल हो। मैं याद क्यों नहीं कर पा रहा हूं कि तुम रह चुके हो मेरी क्लास में। एक्चुअली 6 साल हो गए ना मुझे आए हुए, 6 साल बाद आया हूं, आता ही नहीं था। हर इंसान जिंदगी में अपने बड़ा तलखी और तंगी में गुजरता है, किसी के पास किसी चीज की तंगी है तो किसी के पास किसी चीज की तंगी है। हमारे पास वक्त की तंगी होती है। चलिए, अदरवाइज मुझे अच्छा लगता है जम्मू कश्मीर में पढ़ाना। मैं तो उस समय पढ़ाता था जब हम जाते थे उन्हीं को पढ़ाने, वो कहते थे सर इंडिया से आए हो, और पढ़ाता था मैं उनको इंडियन पॉलिटी। मैं कहता था कि पढ़ोगे इंडियन पॉलिटी
और हरामखोर हमसे पूछेगा हम इंडिया से आए हैं। तो पहले सोच तू क्यों पढ़ रहा है इंडियन पॉलिटी, मजाक में। लेकिन हम हैं बिहारी दास के दोहे टाइप, घाव गहरा करते हैं। चलिए, तो अब देखिए कि अगर आपको समय नहीं है, जिनके पास, वो समय निकालें। तुम्हारे निकल क्यों नहीं रहा, पहले ये बताओ। तुम तो पूरा मेंस वेंस कितना बार लिख चुके हो यार, बहुत सीनियर है। इनसे आप लोग सीखिएगा जब भी इनके पास वक्त मिले, हालांकि ये भी बिजी रहते हैं, भी नौकरी में, लेकिन आप लोग सीखिए मौका मिले तो, ठीक है। बड़ा अच्छा अनुभव है तुम्हारा और उसका, मीनाक्षी का, अक्षय का भी। मतलब दे वर हाईली प्रॉमिसिंग। और अब पता नहीं क्या ऊपर वाले के मंजूर है, मैंने अगर किसी को बोल दिया कि हो जाएगा तो उसका हो जाता है। देखो तुम्हारे सामने कितने बच्चों का हो गया। एक लड़की को मैंने बोला तू टॉप 10 में रहेगी, चौथी रैंक आई उसकी, वो क्या नाम था, कोतवाल। हम ऐसे ही हैं, बोल देते हैं। तो पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है यार, कुछ तो गड़बड़ था। कितने साल बाद हो रहा है इस बार एग्जाम? पीछे के एग्जाम क्लियर हुए कि अभी कोर्ट में ही है, पहले ये बताओ। कोर्ट में ही है, उनमें तुम्हारा भी फंसा है कि नहीं मेंस में से याद? लास्ट टाइम गए थे, डिस्पोज कर दिया? सुना ही नहीं? जानते हैं जुडिशरी जो है जस्टिस के लिए बनी है, लेकिन जुडिशरी वही नहीं करती। दे डिसाइड द केसेस, दे गिव द डिसीजन, डिक्री एंड ऑर्डर्स, दे नॉट रेंडर जस्टिस, दे डोंट रेंडर जस्टिस। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, आज सब लोग एक काम करिएगा, जस्टिस का अच्छे से डेफिनेशन पढ़िए, पता चलेगा कि असल में जस्टिस तो बहुत मुश्किल हो जाता है, मिलता नहीं है लोगों को। चलिए कोई बात नहीं। तो अब देखिए कि आपको क्या करना होगा भाई। आपको एक काम जरूर करना है कि आप अच्छे से तैयारी करिए, पहले मेंस की तैयारी करिए, उसके बाद आप प्रीलिम्स की तैयारी करिए, यानी कि आप अपनी कंप्लीट तैयारी करिए। मेंस देयर आफ्टर प्रीलिम्स, जब ये दोनों तैयार हो जाएं तब आप अपने एग्जाम में बैठिए, तब आपका एग्जाम का रिजल्ट आएगा क्वालिफाइड। फिर आप प्रीलिम्स कहिए, प्रीलिम्स क्वालिफाइड, देन यू विल राइट मेंस, यहां भी क्वालिफाई। मेंस तो तुम क्वालिफाई कर ही रहे हो, मेंस तो तुम क्वालिफाई कर ही रहे हो 2-3 बार, 2 बार। तब प्रमाण है जो मैं कहता हूं, मेरी क्लास के बाद इनसे पूछना कि क्या इन्होंने किया वही चीज तब मेंस क्वालिफाई किए, या जब अपने से पढ़ते थे तब क्वालिफाई किए थे, पूछ लेना। ओके। और उसके बाद जो है, हाँ मेरे तो प्रमाण है बेटा, 17-18 साल हो गए यार। फिर उसके बाद अब देखिए मैंने पहले भी कहा था कि आप इंटरव्यू बोर्ड तक तो पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। और यही नहीं, केवल केएसबी की बात नहीं कर रहा, मैं सिविल सर्विसेज की भी बात कर रहा हूं। वहां क्या होगा, ये आपका वो 30-40 मिनट ही डिसाइड करता है, 30-40 मिनट्स डिसाइड व्हाट विल हैपन विद यू। एंड यू कैन से फिर ऊपर वाले की मर्जी है, अल्लाह की मर्जी, खुदा की मर्जी है, अल्लाह की तरफ। दुनिया में पहले खुदा थे, अब अल्लाह हो गए। बांटते बहुत है चीजों को।
ठीक है ना। और अगर ये नहीं हुआ, जिसने भी मेंस की तैयारी पहले नहीं की, वो क्या करेगा, बहुत अच्छे से प्रीलिम्स कर लेगा, तो भी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद मेंस फेल करेगा 100%। क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में वक्त कितना है, इनसे पूछो। 6 महीना है, 2.5 महीने, मैक्सिमम 90 डेज मिल सकते हैं आपको। और 90 डेज में आप ऊपर वाले खुदा भी आ जाएं तो नहीं तैयार कर सकते यार। भगवान विष्णु भी आ जाए तो कहेंगे भाई तुम लोग बहुत शोषण करते हो, इतना बड़ा सिलेबस बना दिए, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद सब इसमें समाहित हो गया। ऐसा नहीं होता, ये नाइंसाफी है। 3 महीने में नहीं होगा, 6 महीने लगेगा। 6 months it requires at least to prepare। 3 महीने में तो रिवीजन नहीं हो पाता। सो व्हाट हैपेंस, यू फेल, फिर आप फेल करते हो, फिर आप प्रीलिम्स में बैठते हो, फिर आप इसी चक्र में घूमते रहते हो। तो कई लोग आपको दिखते हैं जो 8-10 साल तैयारी करते रहते हैं, उनमें कुछ ऐसे हो सकते हैं दोज हु नेवर प्रिपेयर्ड मेंस। कुछ लोग हार्ड लक वाले भी हो सकते हैं, जैसे ये बैठे आपकी क्लास में अक्षय, एक लड़का, वो बहुत प्रॉमिसिंग लड़का, उसका भी, मीनाक्षी बहुत प्रॉमिसिंग, सी वाज आल्सो इन बैंक, उसी के बेटे को पढ़ाता हूँ, सिद्धार्थ शर्मा। तो जो है, अब आप समझ लीजिए साहब। इसलिए अब इस पूरे प्रिपरेशन को करने के लिए 12 महीने चाहिए और 6 महीने रिवीजन। 12 months कवरेज ऑफ सिलेबस, 6 months रिवीजन, आंसर राइटिंग एटसेट्रा। देन यू विल बी एबल टू क्वालिफाई योर प्रीलिम्स एंड मेंस। फिर आगे खुदा की मर्जी, उनके आगे कौन है, कोई नहीं, ठीक है। ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है, मैं भी नहीं हूं, मैं भी ब्रह्मा के बाद ही हूं, लेकिन मैं ब्रह्मा नहीं हूं तो ब्रह्मा के बाद हूं, समझ लेना। जो बोलूंगा वही होगा। जो मैं बोलूंगा वही होगा, ये जान लीजिए। आपके सिविल सर्विसेज की लाइफ में याद रखिएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ सकता। क्यों? ब्रह्मा के बाद मैं हूं। चलिए सिलेबस आइए जल्दी से। पूरा का पूरा सिलेबस 3 पार्ट्स में बांटिए, डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। हाँ बिल्कुल, गुड, दिस इज द गुड स्ट्रैटेजी। सिलेबस खोल लीजिए, पॉइंट वाइज पॉइंट, सारे पॉइंट लिख लीजिए। आपकी कॉपी में होना चाहिए। ये फाइल कितनी बार खोलोगे? कुछ दिनों बाद ये फाइल भी गायब हो जाएगी, सिविल्स का ये दिया वो प्रिंट आउट भी गायब हो जाएगा, हाथ से लिखे रहोगी वो कहीं नहीं जाएगा। ओके, फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट वो क्या रहा, फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट, psychological aspect of ethics and administrative। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिनका सिलेबस हो, अरे पेपर होगा ऑप्शनल, उनको ज्यादा इसमें पता चले, ठीक है। और एक आदत और डाल लीजिए, अचानक से याद आ गया, जितना कुछ तैयार करिए ना उसको अपना कोई एक प्रिंट आउट रखिए, उस पर टिक करते जाइए, अंडरलाइन करते जाइए जो भी है, और कोई भी सिलेबस का एक भी पॉइंट मत छोड़िए, ठीक है। चलिए अब देखिए, फिलोसॉफिकल बेसिस में आपका पहला वाला टॉपिक क्या है, एकदम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। एथिक्स एंड ह्यूमन, आपके यहाँ इंटरकोर्स लिखा है क्या? उस सिलेबस पूरा यूपीएससी वाला उठा के रखा है, केएस में भी। ओके, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, इसमें देखिएगा आप तो क्या क्या मिल रहा है। हाँ,
एसेंस, डिटर्मिनेंट्स, हाँ, ये पूरा का पूरा एरिया आपका इधर आया, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। सेकेंड क्या है? एप्टीट्यूड, इसी में होगा मोरल फाउंडेशन, फाउंडेशनल वैल्यूज। क्या क्या है? एटीट्यूड, फिर एटीट्यूड का डिटर्मिनेंट एसेंस, है ना, फॉर्मेशन, कंपोनेंट्स, दुनिया भर का स्टोरी होगा। अब बोलो ना। एप्टीट्यूड के बाद दूसरा टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो एटीट्यूड का सारा लिखो ना भाई यहां पर, राइट ऑल द थिंग्स। अगेन यू विल कंफ्यूज कि ये EI में जाएगा कि उधर जाएगा। अगेन चलिए आप मेंशन कर लीजिएगा। फिर उसके बाद क्या टॉपिक है? पब्लिक सर्विस वैल्यूज, पब्लिक सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक सर्विस या सिविल सर्विस। एक और टॉपिक आया होगा बीच में, लेसन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, है ना। प्रोबिटी, प्रोबिटी इन गवर्नेंस, इधर ही आएगा। ये कहां तक जाएगा? मेरे ख्याल से कारपोरेट गवर्नेंस तक जाएगा या वर्क कल्चर तक जाएगा। प्रोबिटी इन गवर्नेंस, करप्शन, करप्शन तक, और कारपोरेट गवर्नेंस तक इसके पहले वाला जाएगा। ठीक, मॉरल थिंकर्स इधर आएगा। एक और होगा लेसन्स फ्रॉम लाइफ ऑफ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड रिफॉर्मर्स। रुको ना भाई, स्टडीज को छोड़ो। हाँ हाँ, ये हो गया मॉरल थिंकर्स। मिल ही नहीं रहा है, अरे लाओ। ह्यूमन वैल्यूज, लेसन्स फ्रॉम द लाइफ्स एंड टीचिंग्स ऑफ ग्रेट लीडर्स। ओके, ये ग्रेट लीडर्स को भी इसी में डालो, यहां से भी लेसन्स आने हैं। लेसन्स फ्रॉम लाइफ ऑफ ग्रेट लीडर्स। ओके, लेसन्स फ्रॉम लाइफ ऑफ ग्रेट लीडर्स। अच्छा, मैं थोड़ा सा ध्यान रखूंगा और ठीक से लिखा करूंगा, साफ सुथरा। कुछ बचा है सिलेबस में? स्टडीज इज एक्चुअली एवरीवेयर, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, हियर आल्सो, हियर आल्सो, हियर आल्सो, हियर आल्सो, हियर आल्सो। केस स्टडीज का मतलब सारे टॉपिक्स पर केस स्टडीज। ओके, चलिए, जैसे मान लो आपने एथिक्स में यही बोला ट्रूथफुलनेस, या आपने एक एथिकल प्रिंसिपल की बात करी। अच्छा हाँ, 1 मिनट में इसको फिनिश कर दूं, फिर आपको मस्ती के साथ भेजता हूं क्लास में। नाउ सी हियर द सिलेबस ऑफ
ethics, integrity, and aptitude can be divided in three kind of topics related with three subjects. लेकिन all these are basically the topics of ethics only, because they are given in the syllabus of ethics. So there will always be a link between all these three topics. नहीं समझा? लिंक तो रहेगा ना सबके बीच में, क्योंकि ये सारे के सारे एथिक्स के हैं. ऑल आर फ्रॉम एथिक्स, ऑफ एथिक्स ओनली. तो व्हाट हैपेंस, जरा ध्यान दीजिए. एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस. When we usually understand or try to understand the attitude of any individual, तब मुझे या आपको, हमें कब पता चलता है किसी दूसरे का एटीट्यूड? इंटरैक्शन होगा ना. Without interaction, you cannot guess. You can guess only, but without this interaction, you cannot judge the attitude. Even after the interaction, sometimes we fail to judge the attitude. As I was, मैं फेल हो गया उसका एटीट्यूड समझने में. चलिए, तो कहने का मतलब क्या हुआ यहां पर? दिस इज ह्यूमन इंटरफेस in itself a topic, but it will be related with attitude also. And suppose you are having a particular attitude and you entered in administration, तो क्या तुम्हारा वो एटीट्यूड इस पर इम्पैक्ट डालेगा कि नहीं? In all the three things, if an individual is dishonest, उसका एटीट्यूड में है कि वो बेईमान है, then he will become a dishonest civil servant or not. It means that is also linked with this also. Now, if there is corruption in administration, it means what? There are people of negative attitude. इसको तो कुछ दिक्कत हो गई इस बार, पक्का? गुड. तो क्या हुआ? इधर वाला जो कुछ है, अगर इधर अच्छा नहीं चल रहा, इफ इज नॉट गुड, तो पीछे कुछ रीजन होगा, कुछ तो कारण होगा. और इसका मतलब यह भी हुआ कि दीज पीपल आर नॉट एथिकल. असल कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना? ठीक. तो क्या है? एथिक्स इज अ सब्जेक्ट दैट रिक्वायर्स holistic approach, not the segregated approach. Clear? लॉक करें? लॉक कर दें? गुड. तो ये ध्यान रखना है कि एथिक्स में आप अलग अलग सोचना नहीं है. आपको पढ़ना शुरू में अलग अलग है, लेकिन आपको टोटालिटी में सोचना है. तो टोटालिटी में कौन सोचने के लिए आपको मजबूर करेगा? तो मैं ही करूंगा, और कौन करेगा? अब जैसे अभी देखिए, टोटालिटी में मैं आपको मजबूर करता हूं. देखिए, केस स्टडीज क्या है ये भी जान लीजिए. एक स्टोरी है, ऑन द रियल स्टोरी. देयर वाज अ महर्षि
and he was known for his truthfulness. वो हमेशा सच बोलते थे. अच्छा छोड़ो, महाभारत की स्टोरी पता है? युधिष्ठिर, अर्जुन, कर्ण, ये सब सुना है? पढ़ा तो सुना होगा. युधिष्ठिर was and is known as Dharmaraja. Why Dharmaraja? Just because of the reason he never spoken. हमेशा ट्रुथ, सच बोलने वाले. पांडवास के गुरु थे द्रोणाचार्य. ये तो आप जानते ही होंगे. द्रोणाचार्य, गुरु द्रोण. द्रोणाचार्य को मार नहीं सकता था कोई, अनटिल अनलेस कि वो खुद ही अपना आर्म्स एंड एम्युनिशंस सरेंडर ना कर दें, छोड़ ना दें. हाउ इट वॉज पॉसिबल दैट गुरु द्रोणा विल पुट डाउन हिज बो एंड एरो? then it was told by Krishna, Lord Krishna, that there is only one condition. If he will listen the news of the death of his son, then he will put down. उनके बेटे का नाम था अश्वत्थामा, and he is immortal. उनके बारे में यही है हिंदू माइथोलॉजी में कि वो अश्वत्थामा इमॉर्टल है, अभी भी वो अमर हैं. तो अब इमॉर्टल है तो मरेगा नहीं. तो क्या हुआ कि भीम ने अश्वत्थामा नाम के there was an elephant named as अश्वत्थामा, उसको मार दिया. एक गदा मारा, हाथी मर गया. अब ये मैसेज पहुंचाना था कि अश्वत्थामा मर गए. तो इन्होंने, कृष्णा ने किया छल और कहलाया कि अश्वत्थामा मारा गया. तो द्रोण ने कहा ना, मैं तब तक नहीं मानूंगा क्योंकि मेरा बेटा तो अमर है, ही इज इमॉर्टल, देन हाउ ही कैन डाई. तो मैं तब मानूंगा जब युधिष्ठिर बोल दे. ये तो युधिष्ठिर said फर्स्ट लाइन लाउडली, सेकेंड लाइन अश्वत्थामा अमरो नरो वा कुंजरो. उन्होंने कहा, जब उनसे पूछा गुरु द्रोण ने कि क्यों युधिष्ठिर तुम क्या कह रहे हो, तो उन्होंने कहा अश्वत्थामा तो मरा. अब इंसान मरा कि हाथी मरा, मैं ये नहीं कह रहा कुछ. नॉट सेइंग सैट. और उसी समय जब नरो व कुंजरो निकलना था, उसी समय कृष्ण ने अपना शंख बजा दिया. इस साउंड में नरो व कुंजरो सुनाई ना दे द्रोण को. और द्रोण ने जैसे ही रखा अपना बो एंड एरो, अर्जुन ने मारा तीर. The case study is whether the conduct of Yudhishthira was ethical or unethical. क्या कहेंगे? बताइए. ये केस स्टडी है, ऐसे ही केस स्टडी होता है और कुछ नहीं है. दिस इज ओनली द वे इन विच केस स्टडीज आर आस्क्ड.
जो जिसके मन में आए बोलो यार। युधिष्ठिर सुनने आ रहा है क्या? टेंशन ले, बोलो। अनएथिकल कौन बोल रहा है? जल्दी बोलो, हाथ उठाओ। हाँ, और तुम्हारा क्या जवाब है? कुछ नहीं है। घर तो है ना। अरे बोलोगे जनाब, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। आप बोलिए शबनम, क्या कहेंगी आप? एथिकल या अनएथिकल, जो मन में आए बोलिए। अब देखिए यहां पर क्या होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था रिलेटिविटी। रिलेटिविटी, तो रिलेटिविटी ये है, दो चीजों का मामला है यहां पर। एक तो वो जो वॉर थी, वो जो युद्ध था, वो धर्म युद्ध था, अधर्म के विरुद्ध था। मारना किसको था? जो अधर्म के साथ था। अधर्मी नहीं था, बट अधर्म के साथ। और दूसरी बात, युधिष्ठिर ने तो अपनी पूरी बात कही। युधिष्ठिर सेड द कंप्लीट ट्रुथ। सुनने वाले ने आधा सुना, ये उसकी गलती। है ना? कम्युनिकेशन गैप नहीं, कम्युनिकेशन डिस्टॉर्शन। तो डिस्टॉर्ट किया गया है ना, तो डिस्टॉर्ट किया, शंख बजा करके उन्होंने पांचजन्य बजा दिया। अब पांचजन्य की गूंज से पूरा कुरुक्षेत्र हिल जाता था। जैसे मेरी आवाज से दीवारें हिलने लगती है कि नहीं? 2 घंटे हो गए, मेरी आवाज का तो पिच टोन सब एक ही जैसा होगा। तो फिर तो कहने का मतलब यह है कि एथिक्स में हम हमेशा एब्सोल्यूट नहीं हो सकते हैं। एक्चुअली इन प्रैक्टिस, थ्योरेटिकली तो हम एब्सोल्यूट ही रहेंगे ना। Principles may be absolute, but practically there might be the theory of relativity. ऐसे ही देखो, when there is a murder done by anyone, law भी इसको देखता है, theory of relativity. अरे यार, जब पूरा वर्ल्ड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर बेस्ड है, तो लॉ क्यों नहीं देखेगा? एथिक्स क्यों नहीं देखेगा? लॉ भी देखता है। कैसे बताए? मर्डर का इंटेंशन क्या था? सेल्फ डिफेंस के लिए मारा, तो कोर्ट कह सकता है कि कोई बात नहीं, ठीक किए, जाओ, इसको छोड़ दिया जाए। है ना? गलती से मर गया, मोटर एक्सीडेंट, तो मोटर एक्ट में केस चलेगा। इंश्योरेंस आपका है तो कंपनसेशन मिल जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी देगी आपको, वो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका केस भी इंश्योरेंस कंपनी, और आपने मारा। अब देखिए इसमें भी कैटेगरी बढ़ती चली जाएगी। आपने मारा, इंटेंशनली मर्डर। अब आपने किसी मोटिव के साथ मारा, यू किल्ड विद अ मोटिव, और सीवियर। अब मोटिव में कौन कौन सा मोटिव? यू आर किलिंग लाइक ISIS, और यू आर किलिंग लाइक अ क्रिमिनल, लोकल क्रिमिनल। इंटेंसिटी changes, and as the intensity is changing, the severity of the punishment changes, and as the intensity increases, severity of the punishment increases. यही होता है ना?
So this is what applied everywhere and this is called theory of relativity. लेकिन पहले तो एब्सोल्यूट चीजें पढ़ लीजिए कि एब्सोल्यूट मैनर में क्या सही है, फिर तो रिलेटिव पढ़ा जाएगा। हाँ भाई, आज के लिए इतना काफी है कि और दूं? पक गए। कल से 6 घंटे पकाऊंगा, 10 से 4, पता है ना? नो सर, क्यों नहीं बताया? अभी बताएगा आपको। तुझे एग्जाम लिखना है ना, लिखना है ना? इन लोगों को बताओ। मतलब ये चाहते, देखो आपके अपने दोस्तों से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता। अब ये दोनों ये चाहती हैं कि एग्जाम ना लिखने पाए, एथिक्स का सिलेबस ना खत्म हो, एग्जाम लिख ही नहीं पाएगी। थैंक यू, इट वॉज वेरी गुड क्लास एंड वेरी गुड इंटरेक्शन विद यू पीपल। अरे लेट मत होना। हाँ, थैंक यू। याद कर लो। क्लास टाइमिंग अपने टाइम पे है। बोले सुबह 10 से 6। 10 बजे बोला है। 10 से 6।